नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज़। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की 16वीं सभा की बैठक का उद्घाटन कर रही हैं। आइए सुनते हैं। Fiscal prudence and financial probity are critical elements of statecraft. Similar references can also be found in the civilizational journey of Egypt, Greece, and Rome. In this historical context, I regard the 16th Assembly of the SOCI as a continuity of the humanities' efforts to evolve a better and prosperous society by adhering to the canons of fiscal prudence and financial probity. Ladies and gentlemen, the CAG of India plays a key role in ensuring transparency and accountability in country's public finance. It was not without reason that the Indian Constitution vested the office of CAG with a wide mandate and complete autonomy. While explaining the role of CAG in the Constituent Assembly, Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of our Constitution, had aptly described the CAG as the most important officer in the Constitution of India. I believe that the office of the CAG has lived up to the expectations of the Constitution makers. It follows a strict code of ethical and moral conduct that ensures the highest order of probity in its functioning. What is equally important for effective auditing of public finance is timeliness. If a wrong is pointed out well within time, it can be corrected. This implies that an auditor is entrusted with the task of not only pointing out faults, but also suggest a way out to improve the quality of governance. The mandate of public sector audits has expanded beyond traditional auditing to include assessing the effectiveness of public welfare schemes and projects, ensuring that they serve all citizens equitably. In an increasingly technology-driven world, more and more public services are being delivered using technology. Audit, therefore, needs to keep up with the technological evolution in order to be able to perform its oversight functions effectively. Ladies and gentlemen, today we are at the critical juncture where emerging digital technologies like artificial intelligence, data analytics, machine learning, and geospatial technology are becoming the backbone of modern governance. Digital public infrastructure serves as the foundation of supports and enhance the functioning of the digital economy and services provided to citizens. I am told that the theme of the symposium held along with the Assembly is public service delivery through digital public infrastructure. From digital identities, the e-governance platforms, DPI has the potential to revolutionize the delivery of public services and goods, making them more accessible, efficient, and inclusive. Indeed, we have seen the transformation that DPI has ushered in India. I am particularly happy to note that one of the sub-themes for discussion is the issue of potential disparities in access to digital infrastructure, a subject very close to my heart. In many parts of the world, women and vulnerable sections of the society have less access to digital technologies, fewer opportunities to develop digital skills, and are underrepresented in the digital economy. This divide not only limits their ability to access essential services, but also perpetuates inequality. This is where the role of supreme audit institutions becomes crucial. The auditors, you have the unique responsibility and opportunity to ensure that digital public infrastructure is designed and implemented in a way that is inclusive and accessible to all. Ladies and gentlemen,
Mahatma Gandhi, father of our nation, is an inspiring figure for all of us. But he should be a role model, especially for independent Supreme Audit institutions too. He began his career in public service in South Africa with the launch of the Natal Indian Congress. In 1894, when he was barely 25 years old, he took pains to explain a discrepancy of 6 pence in the annual report of that organization. In all his life, handling large amounts of public donations for various causes, he remained as meticulous as ever. It is said that in his account books, the expression miscellaneous was a taboo. He regarded carefully kept accounts as a must for any organization. He said, and I quote, "Without properly kept accounts, it is impossible to maintain truth in its pristine purity," unquote. He would have wanted public auditors to speak truth without ambiguity. Sharpness and bluntness are opposing qualities, but an ideal public auditor is one who combines them. Instead of financial walls is often beset by opaque account practices. In this setting, the role of independent Supreme Audit institution is to see that public resources are managed efficiently, effectively, and with the utmost integrity. Audits and evaluations by SAIs not only safeguard public funds but also enhance public confidence in governance. With Asia emerging as the continent that is setting global economic agenda of all, you carry the onerous task of improving the lives of more than half of the humanity. I am told that SOSI as a regional group of the International Organization of Supreme Audit Institutions collaborates internationally to improve standards of people's life. This is a remarkable feat. In the recent conference of the Supreme Audit Institutions of G20 countries at Goa, the member nations resolved to collaborate, learn, and emulate the best audit practices from each other. This resolution is consistent with the age-old spirit of India, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is but a family. I am told that SOSI began its journey from New Delhi in 1979. So today you are coming back to your roots. The institution of CAG of India has a rich history of public auditing. I am confident that SAI India, as host of the 16th SOSI Assembly, will have lot to offer in the deliberations of the learned minds gathered here. I would also like to congratulate SAI India for assuming the chairmanship of SOSI for the period 2024 to 2027. This is the fourth occasion when CAG of India will chair the SOSI. This is a momentous occasion not just for SAI India but for us as a nation. I am confident that under the able stewardship of the CAG of India, SOSI will reach new heights, fostering greater cooperation and innovation among the members. I wish you fruitful discussions and a successful assembly ahead. Together you can work towards a future where audits contribute not only to transparency and accountability, but also to a more inclusive and equitable society. I am hopeful that in addition to the official deliberations, you will have an opportunity to explore and enjoy the rich and diverse Indian culture. I wish you all a comfortable and enjoyable stay in India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि ये SAI की 16वीं बैठक का उद्घाटन किया, यहाँ संबोधन दिया और साफ तौर पर जो उभरती हुई तकनीक है, डिजिटल संरचना है, उसमें किस तरह से SAI की भूमिका रहने वाली है, जो ज़्यादा पारदर्शी होगी, उसकी जवाबदेही भी अब उत्कृष्ट होगी, उसका जिक्र उन्होंने किया और साफ तौर पर कहा कि जो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है उसे और सुदृढ़ करने की वजह से ट्रांसपेरेंसी में और ज़्यादा इजाफा होगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों में बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो गया। विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को बेहद सफल बताया। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम PM दिल्ली लौट आएंगे। इक्कीस से 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री का अमेरिका में बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की और 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा। There have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that have that we have seen, and we've been involved in some of those, where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन भी दोहराया। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की और PM मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर ज़ेलेंस्की ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वो भारत के साथ मिलकर सक्रियता से काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और G20 में शांति फॉर्मूला लागू करने और दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी के विषयों पर भी जब भी अवसर मिला, दोनों देशों के बीच ठोस चर्चा हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की और इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर जोर दिया गया। पीएम ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात हुई। हमने भारत वियतनाम मित्रता की संपूर्ण श्रृंखला का जायजा लिया। हम कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में गति बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफ़ी अहम रही। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक के विकास के मुख्य ये सब ड्राइविंग फोर्स हैं। Extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। For the first time, the entire UN membership through the Pact of the Future that was adopted this morning has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister therefore highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. तो ये देखिए आपने खबरें प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियों की अगर बात की जाए तो राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया और वाहनों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अगर बात करें तो प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया और इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ, कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाने हैं। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्र वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है। हिंसक विद्रोह में प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार कर मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 25 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। वहीं 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के मतदान से पहले सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत जीत के लिए झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी आज
जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मियों को और बढ़ाने वाले हैं। गडकरी आज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। पहली सभा 12:30 बजे कठुआ के बसोहली में होगी, तो वहीं दूसरी रैली उधमपुर के चेनानी में 2:30 बजे। उसके बाद गडकरी 4 बजे जम्मू के विजयपुर में होंगे और अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर में फिर प्रचार अभियान की कमान थामेंगे और इससे पहले कल भी पुंछ और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इस राज्य का दर्जा वो इसे जरूर दिलाएंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपने घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को गिनवाया। 90 विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हरियाणा के रण को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद कल सोनीपत के गोहाना में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां कम होते हुए दिखाई दे रही हैं, जहां अपनी उपेक्षा से नाराज कुमारी शैलजा ने अब तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा 26 तारीख से हरियाणा में फिर से चुनावी अभियान शुरू कर सकती हैं। इससे पहले कल कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 26 सितंबर से चुनावी प्रचार शुरू कर सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। मायावती ने राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करने का आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की SC, ST, OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली और छल कपट की है। अपने देश में वोट के लिए यह आरक्षण का समर्थन और इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत वो करते हैं और विदेश में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात भी करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस के दोहरे मापदंड से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा। मायावती ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने OBC आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी के संघर्ष से SC, ST के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, वो अभी तक लंबित है। और फिलहाल वक्त शुरू से ब्रेक का है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज कोटा में नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच का जायजा लेंगे। रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई 2024 को RDSO द्वारा कवच 4.0 संस्करण को अंतिम रूप दिया गया। सवाई माधोपुर से कोटा और नागदा तक इसकी पहली स्थापना पूरी हो चुकी है। रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, जिसपे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, RDSO की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है। तो आज उसका निरीक्षण करूँगा और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाजा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक नई
एक धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके, और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाजा, और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाजा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूँगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रही। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 28 सितंबर तक उज़्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। वित्त मंत्री भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर भी करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री भारत उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम की चर्चा में भाग लेंगी। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और AIIB के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां एक बलात्कारी के लिए मातम मना रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी बलात्कारी बचाव अलायंस चला रही है। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला और अपनी ही पत्नी, पूर्व पत्नी के साथ रेप करने वाला अक्षय शिंदे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने तब सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जब उसने, बताया जाता है, उनकी गन लेकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश की। पर ये क्या हो चुका है, एक तरफ महाराष्ट्र और बदलापुर राहत की सांस ले रहा है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां मातम मना रही है एक बलात्कारी के लिए। ये बलात्कारी बचाओ अलायंस है क्या? कोलकाता में आरजीकर मामले में बलात्कारी को बचाओ, कन्नौज में नवाब यादव को बचाओ जबकि DNA टेस्ट आ चुका है, अयोध्या में मोहित खान को बचाओ। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस, खास करके सागरिका घोष जैसे नेताओं के ट्वीट देखिए, वो बलात्कारी के पक्ष से बोलने लग गए। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस ने इंटरनेशनल जाली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के 10 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सपा पार्टी से जुड़ा एक नेता है। पुलिस ने सपा नेता और उसके गैंग के सदस्यों के पास 5,62,000 के जाली नोटों के साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए। ये बदमाश यूपी बिहार सीमाई इलाकों में जाली भारतीय नोट का कारोबार करते थे। कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को सुनवाई टाल दी थी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी। इन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कर्मचारियों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% ब्याज दर के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 33 याचिकाएं दायर की गई। आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बंगाल की सरकार की याचिका भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई में सभी नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी बताया था और कहा था कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की ज़रूरत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम इस वक्त रांची में है। टीम में 12 सदस्य हैं जो झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जायजा ले रहे हैं। आज दूसरे दिन भी सभी जिला के जो उपायुक्त हैं और पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ बैठक होनी है और टीम ने पहले दिन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, विभिन्न एजेंसियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की टीम के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों का आकलन किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय से आयोग को अवगत करवाया।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने आयोग को बांग्लादेशी घुसपैठ की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया है और इसके अलावा चुनाव की तारीखों को तय करते समय पर्व त्योहारों का ख्याल रखने और कम अंतराल में मतदान कराने की भी मांग की है। और आइए अब रुक करते हैं एक बार सुर्खियों की तरफ। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों में करीब 500 लोगों की मौत। जवाबी हमले के बाद इजरायल ने 30 सितंबर तक लगाई इमरजेंसी। संयुक्त राष्ट्र ने ताज़ा हालात पर जताई चिंता। आज से 2 दिन तक महाराष्ट्र की नब्ज टटोलेंगे बीजेपी नेता अमित शाह। नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर समेत विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का जो मतदान है वो है कल। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कठुआ, उधमपुर और जम्मू में होगी रैली। श्रीनगर में राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का प्रचार। हरियाणा में नायब सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी। कांग्रेस में भी हुड्डा खेमे और कुमारी शैलजा में सुलह की खबरें। और शेयर बाजार में लगातार रौनक है जारी। सेंसेक्स पहली बार 85,000 के पार। निफ्टी में ने बनाया नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। और अब खबर दलाल स्ट्रीट से, जहां कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय शेयर बाजार तेजी से पटरी पर लौटा और एक बार फिर नया इतिहास रचा। सेंसेक्स ने आज 85,000 के आंकड़े को पार किया। वहीं निफ्टी ने 25,978 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। एनएसई पर ऑटो, फार्मा, मेटल, मीडिया, एनर्जी, इंफ्रा और हेल्थ केयर के तमाम जो सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए इंडेक्स नज़र आ रहे हैं। वहीं आईटी, फाइनेंस सर्विसेज, एफएमसीजी, रियल्टी में दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम गेनर्स पैक की बात करें तो टाटा स्टील, नेस्ले, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, सन फार्मा, भारती एयरटेल और एनटीपीसी टॉप गेनर्स चार्ट को लीड करते हुए। और रोजगार के मोर्चे से अच्छी खबर, श्रम मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर ये बताया कि पिछले जुलाई महीने में देश में करीब 20 लाख से के नए रोजगार मिले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या 25 साल से कम उम्र वाले युवाओं की है। कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था ईपीएफओ के मुताबिक इस साल जुलाई में उसके साथ 19 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े। जुलाई में ईपीएफओ से जुड़ने वाली नई महिला सदस्यों की संख्या 3 लाख के पार। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.94% की बढ़त देखी गई। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक ईपीएफओ से जुलाई में जुड़े कुल सदस्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात की हिस्सेदारी 59% से ज़्यादा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा 20.21% सदस्य महाराष्ट्र से हैं। बड़ी बात यह है कि ईपीएफओ के सदस्यों में शुद्ध वृद्धि की अगर बात करें तो वो 38% से ज़्यादा है और इसकी हिस्सेदारी सर्विसेज सेक्टर की वजह से है, जहां मैन पावर, सप्लाइंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, सिक्योरिटी सर्विसेज शामिल हैं। और अब बात इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई। भारत ने वॉशिंगटन डीसी में आईपीएफ, सप्लाई चेन काउंसिल एंड क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बैठक में पहली बार उपस्थित होकर भाग लिया। एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाने के लिए सेमीकंडक्टर बैटरी पर केंद्रित महत्वपूर्ण खनिजों और रसायनों के लिए 3 कार्य योजना दल बनाए गए। लॉजिस्टिक्स सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और माल की आवाजाही पर उप समिति की स्थापना की गई। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अनुभव और जोखिम का विश्लेषण करने के लिए डेटा और एनालिटिक्स पर उप समिति की स्थापना की गई। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क बैठक में आपातकालीन सिमुलेशन संबंधी तमाम क्रियाकलाप भी पेश किए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला में
पहली बैठक में उपस्थित होकर भाग लिया और इसके बाद 13 सितंबर 2024 को क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बैठक हुई। और इन बैठकों से पहले एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा हुई, जिसमें समर्पित आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के निर्माण और स्केल जैसे टूल के विकास सहित अमेरिका की तमाम पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख ग्लोबल बैंकर जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने अनुमान जताया कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन ने इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की तरह मजबूत लीडरशिप का फायदा भारत को मिलता रहे तो 2030 के दशक के अंत तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना संभव हो सकता है। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा तैयार की गई डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा कि बुनियादी संरचना तैयार होने से एडवांस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सर्विस प्रोवाइडर्स जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक में वर्चुअली शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बैठक में अर्धचालक स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज, रसायन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी कार्य योजनाएं ढांचे की पूर्ण क्षमता को अनलॉक करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में प्रमुख पहल हमें आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में सुधार करते हुए सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में भारत साझा समृद्धि की दिशा में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IPEF सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की, जिन्होंने मोदी 3.0 के 100 दिन पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पिछले 10 वर्षों के काम को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगुवाई में मात्र 100 दिनों में विकसित भारत 2047 की नींव रखी जा चुकी है। पीएम किसान योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों के 20,000 करोड़ रुपए उनको दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 109 नई फसल की जो किस्में हैं वो पेश की गई। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत 4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बुनियादी ढांचे में 3 लाख करोड़ का निवेश एक बड़ी उपलब्धि है। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि हम साथ मिलकर भारत के लिए एक उज्जवल मजबूत भविष्य को आकार दे रहे हैं। 2014 से पहले पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उभरते हुए एनडीए सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया बल्कि अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार के साथ विकास पथ पर लाई। विभिन्न रेटिंग एजेंसीज और थिंक टैंक ने अनुमान जताया कि अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि विश्व बैंक से लेकर IMF और दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं। अब जो ताजा अनुमान सामने आए हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ा है। IDBI कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 6 वर्षों में हर 18 महीने में अपने GDP में $1 ट्रिलियन जोड़ने के लिए तैयार है। इस गति के साथ भारत 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो 2030 तक खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, जबकि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री और लेखक गौतम सेन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। चाइना का समस्या तो होना ही था, क्योंकि ये तो 20 साल बहुत शार्प ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, तो ये तो रोकना था। वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी हुआ, कुछ राजनीति भी हुआ, इसलिए उसका स्लोइंग डाउन पता नहीं क्या 4% ये साल होने वाला है।
और वहाँ पे और पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डेमोग्राफिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, तो इसलिए लगता है चाइना विल डेफिनेटली स्लो डाउन। और उसका इकोनॉमी का साइज इसलिए इसके लेके भी बहुत विवाद है। कोई कहता है 18 ट्रिलियन, कोई कहता है 14 ट्रिलियन, कोई कहता है 12 ट्रिलियन। तो हम इतने पीछे नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब तक जैसे लगता है ट्रेजेक्टरी जो लगता है हम 7 ट्रिलियन तो जरूर पहुंचने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 और 31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2 गुना होकर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इससे न केवल भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। साथ ही इससे भारत की प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वर्ग तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2030 और 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अर्थशास्त्री गौतम सेन का भी कहना है कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बनने वाला है। उन्होंने इसके लिए विनिर्माण, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम तो डेवलप कंट्री बनने वाले हैं। हमारे इनकम पर कैपिटा $10,000 हो जाएगा। अमेरिका से फिर भी हम पीछे रहेंगे, मगर 2-3 चीज़ हमें करने पड़ेगा। वो एक तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेगा। विदेश में क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अब ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। हमारे जो कहते हैं ट्रेड जीडीपी रेशियो इज 42, सो ऑलमोस्ट हाफ हमारी इकोनॉमी बाहर के साथ जुड़े हुए हैं। भारत जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में 8.2% की तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार बेंचमार्क में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का $5 ट्रिलियन का शेयर बाजार 2024 में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोमवार को भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड के स्तर पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई, अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिडनी में क्रूज लाइन्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक जोएल कैट्स के साथ बैठक की। बैठक में क्रूज पर्यटन की वर्तमान चुनौतियों और निदान पर चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। खरीफ फसलों में धान, श्रीअन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर तक खरीफ फसल की बुआई 1104 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। इस वर्ष 128 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में दलहन और 192.55 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न की खेती की गई। भारतीय रियल एस्टेट बाजार का आकार वर्ष 2047 तक कई गुना बढ़कर 5 से 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। रियल्टी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई और रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। यूको बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की है। इसके लॉन्च के साथ कुछ डिजिटल कर्ज उत्पाद पेश किए गए हैं। यूको बैंक के एमडी सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा कि 4 लाख रुपए तक का प्री क्वालिफाइड पर्सनल लोन अब 30 सेकंड में मिल जाएगा। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को ट्रांसफार्मर के जीवनकाल को लंबा करने वाले उपकरण सेल्फ रीजेनरेटिंग ट्रांसफार्मर ब्रीदर के लिए पेटेंट मिला है। ये उपकरण बिजली ट्रांसफार्मर को नमी से बचाता है और इस तरह उसका जीवनकाल लंबा करता है। शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाने और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए कई सरकारी कंपनियां अपनी ग्रीन एनर्जी इकाई का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें कोल इंडिया, ओएनजीसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, इंडिया ऑयल और एनएलसी इंडिया शामिल हैं।
सौर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज और डिजिटल भुगतान फर्म वन ओबिक्विक सिस्टम्स को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। वारी एनर्जीज ने दिसंबर 2023 में और मोबिक्विक ने जनवरी 2024 में अपने आईपीओ दस्तावेज जमा किए थे। म्यूचुअल फंड निवेशक आधार सितंबर में 5 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। फंड निवेशकों की संख्या में पिछली 1 करोड़ की वृद्धि में उद्योग को 21 महीने लगे। वहीं 2 करोड़ से 4 करोड़ निवेशकों की संख्या तक पहुंचने में 26 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। वो करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया। इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में 490 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं इस हमले में 1600 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेबनान की ओर से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसने अब तक हिजबुल्लाह के करीब 1300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा कि इजराइल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने कहा कि बहुत से लंबे समय से हिजबुल्लाह अपने आप को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इजराइल के लोगों से एकजुट रहने का आग्रह किया। इजराइल ने हाल ही में लेबनान सीमा पर रह रहे लोगों को इलाके खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी की। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सेना भेजी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया है और तनाव कम करने के लिए इजराइल और लेबनान दोनों से संपर्क साधा है। A message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. और वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास से जारी संघर्ष के बीच एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित की है। दरअसल रविवार को हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के 300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से रक्षात्मक उपाय अपनाते हुए इजराइल ने पूरे देश में 30 सितंबर तक स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन इमरजेंसी की घोषणा की। वहीं इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को लेकर वैश्विक नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। फ्रांस के विदेश मंत्री लेबनान पर सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर चुके हैं। रुख खेल जगत की खबरों का। 45वें चैंपियंस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन और पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम भारत लौट आई। भारतीय चेस टीम का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने खुशी जताई और इसको गर्व का क्षण बताया है। Chess Olympiad, gold in both open and women's section. This is a very historical achievement, and there are not many teams which have won both at the same time, and we are winning for the first time gold in Chess Olympiad, and we managed to do it at the same time, and it's a very proud moment for all of us. Last time in Chennai, we were very close to winning a gold medal, but the last two games things didn't go in our favor, and we won a bronze medal in both sections. So this time we were more experienced because we all played in the last year's Olympiad, so we managed to use our experience and play our best, and we managed to get gold in a very dominating fashion. वहीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा कि वो स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। I'm very happy to be part of the winning team in the Indian gold medal team in the Olympiad, which was held at Hungary. Both the teams have secured gold medal. It's like a historic moment.
In the previous Chennai Olympiad, we were close to winning gold medal, but we missed out in the last match and we secured bronze. It was really painful moment. I'm very happy that both the men and women team managed to deliver it this time. The women team lost one crucial match against Poland, and then we drew against US. It was very crucial that we win last 2 matches to secure gold. I'm very happy that the teammates also delivered it when needed, and it's an historical moment. चेस ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन ओलंपियाड में भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने से बेहद खुश हैं। जीत के बाद स्वदेश पहुंचने पर श्रीनाथ नारायणन ने भारतीय टीम की इस ओलंपियाड विजय यात्रा को अब तक की सबसे प्रभावशाली जीत बताते हुए कहा कि पूरी टीम का प्रयास और एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। This is a historic achievement for the first time in offline Olympiad, which has a rich tradition going over 90 years, like the Olympics itself. I was the captain of the men's team, and as far as the men's team was concerned, it was a very smooth journey. We won 10 matches, we drew 1, and we won by a margin of 4 match points. Spectacular performances by all individual players as well. Gukesh and Arjun in particular, they had historic performances, all-time best performances. And also very good support from Pragyananda, Vidit and Hari Krishna. It was a complete team effort and a historic achievement. लगातार बदलती हुई जियोपॉलिटिकल दौर में भारतीय नौसेना दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी 2 अक्टूबर को 21,600 नॉटिकल माइल से अधिक की यात्रा पर रवाना होंगी, जो 8 महीने तक चलेगी। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक लंबी और साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया के समंदर में उठती लहरों और खराब मौसम से अकेले लोहा लेने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दीना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पूरी तरह से तैयार हैं। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सहन शक्ति और फिटनेस की अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय नौसेना का नौकायान पोत INSV तारिणी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संदेश लेकर सागर को फतह करने 2 अक्टूबर को गोवा से रवाना होगा। मुझे डर नहीं लगता है। समुद्र की इन कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे मौके पर समुद्र से बेहतर कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता है। 8 महीने की ये यात्रा भारत की सैन्य कूटनीति का हिस्सा होगी और इस दौरान दोनों महिला नौसेना अधिकारी विभिन्न देशों के लोगों से रूबरू होंगी। जब तारिणी विभिन्न देशों से गुजरेगी तो भारतीय दूतावास इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जल मार्ग इन जाबाज अधिकारियों को केप लिवेन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप के खतरनाक रास्तों से लेकर जाएगा। ये यात्रा न केवल इनके व्यक्तिगत साहस और कौशल का प्रमाण होगी, बल्कि भारतीय नौसेना की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता और उनके अडिग हौसले व दृढ़ संकल्प का भी उत्सव होगा। इन दोनों अधिकारियों को 17 उम्मीदवारों के एक बैच से चुना गया है। 3 साल के कठोर प्रशिक्षण और रियो तथा मॉरिशस सहित 38,000 नॉटिकल माइल्स की नौकायान यात्रा के साथ ये दोनों महिला अधिकारी इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में चल रही सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसके तहत पात्र लोग 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। बिहार में भी 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। देखिए पटना से DD न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना ने न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि इस योजना ने इलाज पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपए की भी बचत कराई है। बिहार में भी इस योजना का लाभ 1 करोड़ 79 लाख परिवारों को मिल रहा है। योजना के तहत बिहार में अब तक 1,624 करोड़ रुपए की राशि गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए खर्च की जा चुकी है और 13 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हाँ, सरकारी मदद सब भेले, देखलकै तो मदद वएह के भेले, मोदी सरकार से वही से हमरा इलाज केलकै हन। पहले से अच्छा है, आयुष्मान कार्ड लगा हुआ है,
कैंसर हुआ है पता चल रहा है, तो इलाज बढ़िया हो रहा है। 1 महीने में जितने भी मरीज आते हैं उसमें 60 से 70% हमारे आयुष्मान से होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम लगभग अपने सभी मरीजों को आयुष्मान के तहत ला करके और उसका पूरा से पूरा इलाज कर पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ देने में बिहार तीसरे स्थान पर है और राज्य में अब तक 1 करोड़ 21 लाख परिवारों के लगभग 3 करोड़ 60 लाख पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। 2024 में रिकॉर्ड 2.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। हालांकि राज्य में कार्ड बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या लगभग 8.50 करोड़ है। ऐसे में सरकार बाकी बचे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना का लाभ किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देने का फैसला किया है। इस फैसले से बिहार के 50 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि अब वह 70 साल से ऊपर का आदमी देश के उन 23,000 अस्पतालों में और हमारे राज्य के लगभग 1000 अस्पतालों में वो कार्ड पॉकेट में रख के कहीं भी हमारे जाएंगे वृद्धजन तो उनका मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज करने की व्यवस्था सुविधा दे दी गई। बिहार के लोगों को आयुष्मान दिवस की पूर्व संध्या पर एक और तोहफा भी मिला है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी शुभारंभ किया है। इसका लाभ राज्य के 58 लाख लोगों को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।